Hello and welcome to Kalam IAS. So today we will discuss the MMP of day 16. So today in this discussion we will discuss the 5 important topics from your GS2 polity section. So this is the first discussion of your polity section, and in this we will cover the 5 topics which are governor, role of governor we will discuss in detail. Then we will discuss e-governance, पंचायती राज institutions, and आपका जो है उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रीएम्बल. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम वी विल डिस्कस. ओके, so without wasting any time let's start the discussion. So friends, as we all know कि only 20 days are left for your mains, so keep working hard. Okay, फुल जी जान ला के मेहनत करो यार, टाइम ज़्यादा नहीं है. So at this Kalam IAS Academy, we are running this marks maximization program where we are discussing the GS1 and GS2 section, where we will discuss the most important topics and we are providing you the content, and then we are taking a test. We are providing you the quality content, then that will be followed by the 5 question test, and then that will be followed by a full-fledged test. So this is our marks maximization program, and here we are focusing on the main most important topic. So now starting with the governor, you can see on this screen. Okay, fair enough. I think it is audible to you now. So before starting on the governor, we should at least look how BPSC has been asking the question from this section. Okay, so 64th में जो BPSC ने क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा था कि डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नर इन स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, पार्टिकुलरली बिहार. ठीक है, तो रोल ऑफ गवर्नर इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन पावर एंड एक्चुअल पोजीशन ऑफ गवर्नर. सो दिस इज नथिंग बट द रोल ऑफ गवर्नर. इसका दूसरी तरीके से पूछा था 60-62 भी में आपको जो है. ठीक है, इसके बाद में जो पूछा है डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस. सो द पावर एंड पोजीशन, रोल ऑफ गवर्नर, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, दिस इज नथिंग बट द सेम थिंग. ओके, ये 53 से 55 में पूछा गया था. तो बेसिकली आपको क्या करना है, गवर्नर पे क्वेश्चन तैयार करना है और एक 4 से 5 पेज का कंटेंट आपका होना चाहिए. वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस क्वालिटी कंटेंट, you can completely rely on that. Okay, so now and your content should be in the format of intro, body and conclusion, and then you must have a separate list of the major value added material. And what are those? The recommendations of various commissions like Sarkaria Commission, Punchi Commission, ARC Commission. Okay, then the various articles related to the governor, and apart from that, where judgment of the Supreme Court defining the role and power of the governor. So, and the commentary of the various eminent political expert and scholar. So you must have a proper content on the governor from intro, body, conclusion, and then you must have a separate notes on the value added material regarding the governor. And then when you mix both of them while writing the answer, and when then you reproduce answer, that will fetch you more marks. Simply writing the answer regarding role and power of the governor will not fetch you more marks. So here बेसिकली क्वेश्चन क्या था यार कि अब इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नर पे हम क्या लिख सकते हैं कि ऑफिस ऑफ द गवर्नर बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ओके, सो दैट कुड बी योर इंट्रो. ओके, राइट. द ऑफिस ऑफ गवर्नर बोरोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ओके, एंड अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर बाय सेंटर. वी बोरोड इट फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन दिस सेक्शन, इन द इंट्रोडक्शन, यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट द governor. See, I am telling you the introduction. What could be the introduction? The governor is under Article 153 of the Constitution. Governor is the executive head of the state. Okay, and Sarkaria Commission called the governor as the linchpin of the cooperative federalism. So this should be your introduction. I am again repeating you कि as per the Article 53 of the Constitution, governor is the executive head of the state. As per the Sarkaria Commission, the governor act as a linchpin of the cooperative federalism in Indian parliamentary form of government. Okay, so this should be the standard introduction for the governor. Now, as we have seen कि क्वेश्चन क्या आता है भाई कि रोल क्या है गवर्नर का, पावर क्या है गवर्नर की, गवर्नर से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या है, गवर्नर का फेडरलिज्म में क्या रोल है. ठीक है, तो ये सारी चीजें वी विल डिस्कस. ओके, सो executive head of the state under Article 153. Okay, governor, CM, COM, advocate general, these are the executive, state executive.
एग्जीक्यूटिव हेड का है, गवर्नर है, और एग्जीक्यूटिव में, स्टेट एग्जीक्यूटिव में आते कौन कौन है? चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. ओके, chief executive head of the state, but so governor, as I told you, chief executive head of the state, like president at the center, it is the nominal head also. So it represents the center and state, thus a dual role. Okay, so the dual role क्या है गवर्नर का? गवर्नर का dual role ये है कि it bring the national perspective at the state level, at the same time it inform the state development, state related development to the central government also, to the central executive. So it is having a dual role. Okay, then what is the act as a representative of? Can you? Is it visible? Okay, right now I think is it visible to you? So how governor is appointed? So governor. So basically, if I'll tell you, so there is a discretion. So the conflict क्या है? So a controversy. You can draw this figure anywhere. Okay. किस चीज को लेकर कंट्रोवर्सी है? पहली कंट्रोवर्सी है अपॉइंटमेंट को लेकर, दूसरी कंट्रोवर्सी है रिमूवल को लेकर, और तीसरी कंट्रोवर्सी है इसकी डिस्क्रिशनरी पावर को लेकर. सो यू कैन ड्रॉ दिस फिगर इन योर आंसर एज वेल, लाइक दीज आर द कंट्रोवर्सी गवर्नर से लेकर रिलेटेड टू गवर्नर. ओके, सो व्हाट आर द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट को लेकर इसकी क्या कंट्रोवर्सी है? जैसा कि हम यहाँ पे अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, दिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. सो दिस मार्क दिस कीवर्ड, द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. सो दिस प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बिकम द मेन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट रिलेशन. ठीक है, जब भी क्या होता है कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी स्टेट में आती है, तो होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय यूजिंग द रूट ऑफ द प्रेसिडेंट, जस्ट बिकॉज देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप टू द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यूज टू प्ले दिस कार्ड. एंड होता क्या है कि जैसे ही कोई दूसरी गवर्नमेंट आई, वो जो है गवर्नर का रिमूवल कर देती है. ठीक है, या अपॉइंटमेंट जो होती है वो गवर्नर के द्वारा होती है. इस चक्कर में क्या होता है कि हाउएवर देयर आर सर्टेन कन्वेंशन हाउ वी शुड अपॉइंट द governor into the state, but these conventions are put aside and only the discretion of the central government. There is no consultation with the state government as ideally it should be, and that caused the cause of conflict. अभी हमने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र में जो एग्जिस्टिंग गवर्नर हैं कोश्यारी साहब, वो किस तरीके से जब महाराष्ट्र में शिवसेना की गवर्नमेंट थी कोलिशन में, तो किस तरीके से एक गवर्नर का जो एक रोल था वो कॉन्फ्लिक्चुअल हो रहा था. सिमिलरली हमने देखा वेस्ट बंगाल में इस तरीके से जो धनखड़ हमारे जो गवर्नर थे, अभी जो वाइस प्रेसिडेंट बन गए, किस तरीके से वेस्ट बंगाल में बिकॉज ऑफ द डिफरेंट आइडियोलॉजिकल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट. सिमिलरली वी आर नाउ सीइंग इन द तमिलनाडु एंड कर्नाटका एज वेल. टीएन रवि जो अभी उनके गवर्नर है वहां हमने देखा. ठीक है, सो बेसिकली एज वी सॉ कि क्वेश्चन आता है कि भाई गवर्नर की पावर रोल क्या है, पावर क्या क्या है. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे गवर्नर की पावर एंड रोल क्या क्या है. सो द पावर ऑफ द गवर्नर. अब जब आप आंसर लिख रहे होंगे कि पावर ऑफ द गवर्नर, तो आपको डिफरेंट हेडिंग्स का यूज करना है. ठीक है, मार्क्स माय कीवर्ड टू गिव अ बेटर स्ट्रक्चर टू योर आंसर. यू हैव टू आंसर इन अ स्ट्रक्चर्ड वे बाय यूजिंग वेरियस हेडिंग एंड सब हेडिंग. So the heading, if the question is asking to discuss the role or the power and the function of the governor, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, power of governor heading डाल के सब हेडिंग डालनी है executive power of the governor. Okay, so what are the executive power of the governor? आपको वहाँ पे लिखना है कि जितने भी executive काम होते हैं, ठीक है, वो सारे गवर्नर ही किया जाता है. अपॉइंटमेंट के जितने भी काम, जिसको भी अपॉइंट करना है, चाहे वो एडवोकेट जनरल हो, चाहे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन हो, ठीक है, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हो, ये सारे जो एग्जीक्यूटिव टास्क हैं ये डन बाय द गवर्नर ओनली. राइट, नाउ अदर हेडिंग जो आएगी वो आएगी आपकी लेजिस्लेटिव पावर. लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर की क्या क्या है, तो अब उसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जैसे आप डालोगे ना कि लेजिस्लेटिव पावर समन प्रोरोग डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर, आपको यहाँ पे आर्टिकल डालना है. आर्टिकल 201, आर्टिकल 200, ठीक है. सिंपली एक तो होता है आप आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो, then it will not create that much impact if you are substantiating your argument with the related article of the constitution. So at least for the governor or for those important topic which you think that which might be asked in the examination, please memorize the related articles of the constitution to substantiate your argument, to create more impact in the mind of the examiner. Right now, so
discussing the legislative power of the governor. So what are the various legislative power? To summon, prorogue the house, okay, to address the state legislature before the starting of the session, before the first commencement of the year, okay. And apart from that, what are other legislative power? Like he nominate the 1/6 member of the council, state legislative council, okay, and that he decide on the question of disqualification, okay. So apart from that, when a bill is sent, उसके पास में पावर होती है, या तो he will assent to give assent to the bill, or he will reserve the bill for the recommendation of the president. So these all are the legislative functions of the governor. Apart from that, there are financial functions, okay. What are the financial power? These are the financial power. What are those financial power? Money bill cannot be introduced without the prior recommendation of the governor, okay. So आपको अगेन एक हेडर डालना होगा फाइनेंशियल पावर, एंड देन यू विल डिस्कस कि मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस. सिमिलरली हर एक 5 साल पे स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन कराया जाएगा गवर्नर के द्वारा पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज के लिए. सो दिस इज अगेन द फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नर. नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, advance out of the contingency fund of India cannot made without the assent of the governor. So these are the basically the financial power of the governor, okay. Now discussing the now answer लिखते टाइम पे मैंने जैसा मैंने आपको बोला, आपको हेडिंग सब हेडिंग्स का यूज करना है to give a better structure and to improve the visibility of the content, so that कि एग्जामिनर आपका आंसर पढ़े तो उसको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़े. So now giving the another heading, the judicial power. Now till now we have discussed the financial power, the executive power, okay, the legislative power. Now we are discussing the judicial power of the governor. So governor की judicial power, as you all know, कि pardoning power जो इसकी होती है, however it is different from somehow from the president. It can grant pardon, reprieve and respite, and can, but he cannot pardon the death sentence, and in case related to the military. Similarly, the consulted by the president while appointing the judges of the state high court. इसकी जुडिशियल पावर में हमने देखा कि एक तो पार्डनिंग की रिलेटेड, दूसरा जैसा कि हमने देखा कि जो भी स्टेट हाई कोर्ट का जो जज होता है, प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है गवर्नर से, एंड गवर्नर मेक द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट. सो दीज आर द जुडिशियल पावर. सो नाउ डिस्कसिंग द रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड इन बिहार. एज क्वेश्चन बार बार इसी पे पूछा गया है कि डिस्कस द पावर ऑफ द गवर्नर एंड द रोल ऑफ द गवर्नर. सो फार वी हैव डिस्कस्ड द पावर्स ऑफ द गवर्नर. एज आई टोल्ड यू, प्लीज डू मेमोराइज द रिलेटेड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू सब्सटेंशिएट और आर्गुमेंट, because if you are mentioning your argument without substantiating with the concerned articles of the constitution, you might not be able to create that much impact to the mind of evaluator. So please focus on this thing. Now we are discussing the role of the governor. So now, as I told you, please use the heading and subheading. Again, now after discussing the power, you have to mention, or you have to put an heading that the role of the governor, and unbox it, okay. So now discussing the role of the governor. So basically we can say कि issue start कहाँ से होता है, वो role of governor, discretionary power. So governor की discretionary power क्या क्या है, अब इस पे भी आपको constitution के article का use करना है. Under article 163, under article 164, clubbed with the article 154, there must be harmonious construction between the discretionary power of the governor. So basically discretionary power governor के बारे में एक बात और है कि governor ने जो कुछ governor जो अपने discretion पे decision ले सकता है, those are the discretionary power of the governor, okay. And the discretionary power of the governor are more wider as compared to the president. And governor के केस में एक special case ये होता है कि what should be the discretionary power of the governor must be decided by the governor himself, okay. If governor says that this is my discretionary power, it automatically become his discretionary power. However, Supreme Court over various judgment curbed the misuse of the discretionary power and defined and narrowly defined the discretionary power of the government. They basically, the convention is that whatever governor will do, he will do with the consultation of the council of minister and the chief minister in the state executive, okay. अब यहाँ पे अगर हम देखें कि रोल ऑफ गवर्नर कैसा रहा है अपने इंडियन फेडरलिज्म में, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1967 की बात अगर हम करें, 1967 जब तक कि कांग्रेस सिस्टम कंट्री में था, नेशनल लेवल पे कांग्रेस की पार्टी थी, इसके बाद में हमारी स्टेट्स में भी कांग्रेस की पार्टी थी. तो जब दोनों में कांग्रेस की पार्टी थी तो सेम आइडियोलॉजी रूल कर रही थी, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा इमर्ज नहीं हुआ. बट एक्चुअल में प्रॉब्लम
started arising after 1967 after the breakdown of the Congress system. ओके हुआ क्या उस टाइम पे कि रीजनल पार्टीज का राइज हुआ, स्टेट्स में कांग्रेस के अलावा डिफरेंट पार्टीज ने रूल करना स्टार्ट हुआ, उनके बीच में बिकॉज ऑफ द वेरियस फेडरल इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए एंड हेंस द रोल ऑफ द गवर्नर और वी कैन से द डिस्प्यूटेड रोल ऑफ गवर्नर स्टार्टेड टू कम्स इनटू द पिक्चर. ओके और इसी वजह से गवर्नर के लिए नेगेटिव वर्ड यूज किए जाते हैं, जिस तरीके से हम देखते हैं कि एजेंट ऑफ द सेंटर और पपेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और वी कैन से द रबर स्टाम्प फॉर द गवर्नर. So we have to analyze ke are these negative terms used for the governor correct or not. The first thing is that governor is a constitutional post, a dignified post. We should avoid using these negative words. जैसा कि हमने देखा कि शायद 65 में बिहार में गवर्नर के रिगार्डिंग पपेट करके क्वेश्चन पूछा गया था एंड दैट एग्जामिनर वाज बार्ड फ्रॉम मेकिंग क्वेश्चन इन द फ्यूचर. ओके तो हम जैसे देखते हैं कि भाई गवर्नर का जो रोल है वो डिस्प्यूटेड है क्यों. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके, बिकॉज ऑफ दीज थ्री थिंग, बिकॉज देयर इज नो क्लैरिटी ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, देयर इज नो क्लैरिटी ओवर द रिमूवल ऑफ द पोस्ट ऑफ द गवर्नर एंड द एम्बिगुअस नेचर ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर. सो दीज थ्री इश्यूज बेसिकली क्रिएट अ विंडो सो दैट द रोल ऑफ गवर्नर बिकम डिस्प्यूटेड. ओके जैसा कि एग्जाम्पल्स के लिए हमने देखा केरला में क्या हुआ था 1959 में democratically elected left government dismissed by the central government on the recommendation of the governor. ठीक है. इसके अलावा हम जैसे कि अगर बिहार की अगर बात करें तो 2005 में क्या हुआ था, 2005 में क्या हुआ था बिहार में, जो बूटा सिंह गवर्नर थे. ठीक है, बूटा सिंह जब यहाँ पे गवर्नर थे तो हुआ क्या था, बूटा सिंह ने क्या किया, रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली डिस्पाइट बीजेपी एंड जेडीयू क्लेमिंग टू हैव द मेजॉरिटी. ठीक है, तो दिस इज द डिस्प्यूटेड रोल ऑफ द गवर्नर इन बिहार. सिमिलरली 1998 में कल्याण सिंह के टाइम पे क्या हुआ था कि बीजेपी गवर्नमेंट फेल शॉर्ट ऑफ सम कोalition पार्टी मेंबर विथड्रॉ द सपोर्ट. गवर्नर इमीडिएटली डिसमिस द गवर्नमेंट एंड इंस्टॉल द न्यू चीफ मिनिस्टर. हाउएवर लेटर कल्याण सिंह गवर्नमेंट वाज रिपोज्ड बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द हाई कोर्ट. ठीक है, बिहार में 2017 में हमने एक और एग्जांपल देखा था कि नीतीश कुमार की जो जेडीयू ने जब ग्रैंड अलायंस जो कांग्रेस के साथ था, आरजेडी के साथ था, तो ही फॉर्म द अलायंस विद द फॉर्मर फॉर बीजेपी एंड स्टेट क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट. गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी थे उस टाइम पे, तो केसरीनाथ त्रिपाठी ने क्या किया, दे इग्नोर्ड द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडीज क्लेम एंड मेड नीतीश कुमार एज द सीएम. आरजेडी को जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो क्लेम कर रही थी कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग और एसआर बोमी जजमेंट में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी उसके अकॉर्डिंग गवर्नर को सबसे पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होती है उसको सरकार बनाने के लिए न्योता दिया जाता है. लेकिन जो बिहार में 2017 में जो हुआ था, जो केसरीनाथ त्रिपाठी बिहार के गवर्नर थे, दे इग्नोर्ड द क्लेम ऑफ द आरजेडी बीइंग अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड ही इनवाइटेड नीतीश कुमार टू फॉर्म द गवर्नमेंट. सो दीज आर द वेरियस इश्यूज हाउ द रोल ऑफ द गवर्नर इज डिस्प्यूटेड. ओके, इसके अलावा what are the various recommendation by the various committees to make the role of governor more fair, we can say. So here we have to use all these recommendation to make our answer more valuable. So what are these recommendations? Like second ARC की जो first ARC 1968 में आई, Administrative Reform Commission recommended that the report of the governor regarding the president rule has to be objective. Okay, suppose that ki governor in a particular state has sent the report to the central government to for the imposition of the president rule. यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे एआरसी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वहाँ पे उन्होंने बोला कि गवर्नर की जो रिपोर्ट जाएगी इसके बेस पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट रूल लगाएगा, वो जो रिपोर्ट है वो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, रीजनेबल एंड रैशनल होनी चाहिए, उसमें सब्जेक्टिविटी का कोई अभाव नहीं होना चाहिए. और सब्जेक्टिव अगर रिपोर्ट के बेस पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल लगा रही है तो दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट. सिमिलरली सरकारिया कमीशन ने बोला कि आर्टिकल 356 जो जिसके के अंडर में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है शुड बी यूज्ड इन वेरी रेयर केस. मतलब अगर बिल्कुल ही नहीं अगर चल रहा है काम इसके अलावा तभी इट शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली इन अ वेरी रेयर केस. अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट शुड अवॉइड यूजिंग दिस आर्टिकल 356. सिमिलरली अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर पे पुंछी कमीशन और सरकारिया कमीशन की गाइडलाइंस हैं कि आप जो है एक ऐसा ही बंदा जो है आप जो गवर्नर बनाओगे जो कि पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, उस स्टेट का नहीं है,
और कंसर्न जो स्टेट है उसके चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करने के बाद में अगर चीफ मिनिस्टर कंफर्टेबल है तो ही आपको वो बंदे को जो गवर्नर बनाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर कंसल्ट जो करने के बाद में चीफ मिनिस्टर अगर इफ से कि ही डोंट वांट टू गो विद दैट पर्सन, यू शुड ड्रॉप द नेम ऑफ दैट गवर्नर। ओके, और कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड या बायस्ड बंदा गवर्नर नहीं बनाना चाहिए। सिमिलरली द पुंछी कमीशन एंड द सरकारिया कमीशन laid down the various procedure for the appointment of the governor। इंटर स्टेट काउंसिल जो है, इंटर स्टेट काउंसिल, वो बोलते हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल का यूज करके एक पूल ऑफ पर्सन बना दो आप जो है, और इन्हीं में से जो है गवर्नर छांटे जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली इसके अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट पे बोलते हैं कि गवर्नर शुड बी क्लियरली लेड डाउन टू द फिक्स्ड टेन्योर। अभी जैसा कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, हमको क्या करना है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट को हटा के एक प्रॉपर टेन्योर देना चाहिए टू गिव सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ताकि गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाए। एसआर बोमी केस लेड डाउन द लिमिट्स ऑफ द गवर्नर डिसमिसिंग द स्टेट गवर्नमेंट, और बोलता है कि फ्लोर टेस्ट जो होगा वो हाउस के हाउस में होगा, बाहर आप नहीं कर सकते और मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। नेबाम राबिया केस जो था, नेबाम राबिया केस में क्या हुआ था, गवर्नर की डिस्क्रिशन कैन नॉट बी आर्बिट्रेरी। इसके नेबाम राबिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया था कि गवर्नर की डिस्क्रिशन आर्बिट्रेरी यूज नहीं कर सकता है। गवर्नर की डिस्क्रिशन वो है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के कंसल्टेशन के बाद ही करेगा। और इसके बाद में जो है हम जो अपने कंक्लूड करेंगे अपने गवर्नर पे, कंक्लूड करते टाइम पे अगेन हमको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या किसी रिकमेंडेशन डाल के अपने जो टॉपिक है उसको कंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो पीडीएफ है दैट वी विल प्रोवाइड यू इन द ग्रुप। Okay, so now when the question will be asked regarding the governor, so as I told you, the question will be regarding the role and function of the governor. I have explained you how we should structure our answer. Introduction, as I told you, under Article 153, governor is the executive head of the state. Okay, in the as the India adopted the parliamentary form of convention, so at the state under Article 153, governor is the executive head of the state. As per the Sarkaria Commission, governor act as a linchpin of the cooperative federalism. ठीक है, then we will start coming to the main core demand of the topic. The core demand हो सकता है रोल पूछा हो सकता है कि वो आपसे फंक्शन पूछ रहा हो सकता है आपसे कंट्रोवर्सी पूछ रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड द रोल ऑफ गवर्नर, एंड देन रोल ऑफ इन विद द स्पेशल रेफरेंस टू बिहार. So even if he has not mentioned ki discuss the role of governor with a special reference to Bihar, even then you have to mention about the activities regarding the governor in the Bihar as well. Okay, and then you have to give the example from the current political perspective. Like you can give the example of the West Bengal, the Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu. Okay. So mind these words: constitutional article, Supreme Court judgment, and the recommendation of the various commission are the keys to fetch extra marks. So now coming to the next topic. So the next topic is the role of the election commission. Again, very important topic, and the question has been asked continuously from this topic. So first see the question, how the questions are being asked. The question is, examine the power and the working of election commission. So again, see 38 नंबर का क्वेश्चन है, काफी जनरल सा क्वेश्चन आएगा, और जनरल सा क्वेश्चन इस तरीके से मतलब एक स्पेसिफिक आपको मतलब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपको आंसर बहुत ही स्पेशलाइज्ड वे में देना है। जो पूछा गया है उसी को आंसर करिए और उसी को आप जो है क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करो, इवन इफ ही इज नॉट, बिकॉज एग्जामिन का मतलब भी एक तरीके से वही होता है। तो पावर एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड इन इट्स रोल इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ओके, सो कीवर्ड क्या है, एग्जामिन पहला कीवर्ड है, दूसरा डिमांड क्या है, पावर एग्जामिन करनी है, देन वर्किंग कैसे फंक्शन करता है, देन फ्री एंड फेयर इलेक्शन में तो 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया। सिमिलरली अनदर रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो आपको रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन की डेफिनेशन आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल, जो भी आपका इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल है आप उस आर्टिकल को डालोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है अंडर आर्टिकल मतलब जो 324 एज पर आर्टिकल 324 द इलेक्शन कमीशन का काम है कि सुपरिटेंडेंट करना, ठीक है। और ये मतलब प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपका डायरेक्ट एंड कंट्रोल, एसडीसी, 3 वर्ड याद कर लो। सुपरिटेंडेंट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शंस ऑफ द स्टेट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो ये जो आपका जो है इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिखोगे वहां पे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यूनियन स्टेट इलेक्शन करती है, ठीक है। इसके अलावा पार्ट 15 में आती है जो है,
ठीक है। इलेक्शन क्या क्या करवाती है? लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन करवाएगी, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। सो दीज आर द 1 2 3 4 5 इलेक्शन कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। Part 15 of the Constitution deal with the Election Commission and establish commission for these matter. Established on 25 January 1950. Article 324 to 329. Most important article. Define the power, function, eligibility, tenure of the commission and member. Okay. पहले शुरुआत में एक चीफ इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, बट 1991 के बाद में दो और ऐड हो गए, बट दे आर द मतलब इक्वल्स हो गए। ठीक है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? सो कमिंग टू द फंक्शंस, so the functions is, as I told you, SDC. The Election Commission of India superintendent, direct and control the entire process of conducting election to the parliament, state legislature, president and vice president. Okay. He decide the election. इसके और क्या क्या functions है? Function पूछने को आएगा। तो Election Commission के various functions जो हैं आपने तैयार कर रखे होंगे, आप उनको अच्छे से डिस्कस करके जो है याद करके जाइएगा। ठीक है। तो क्या क्या functions हो सकते हैं कि मतलब इलेक्शन का शेड्यूल बनाना, इलेक्शन की डेट रिकमेंड करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट कर पाना, पॉलिटिकल पार्टीज को एफिलिएशन देना, पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल प्रोवाइड करना। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको ऑब्जर्व करना। ठीक है। पोलिंग अरेंजमेंट करना, रोल लिस्ट बनाना कि कौन बंदा वोट दे पाएगा, कौन बंदा नहीं दे पाएगा। ठीक है। तो ये सारे जो काम है, रिकॉग्निशन देना, एक याद रखना, राइट टू रिकॉग्नाइज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में, बट डी रिकॉग्निशन का राइट नहीं है। Advisory jurisdiction in the matter of post-election disqualification of sitting PM MLA, model code of conduct I told you, set the limit of the electoral expenditure, campaign expenditure per candidate. Okay. Importance of ECI. अब यहाँ पे हम जो है बात करेंगे importance of ECI पे, क्या importance है। ठीक है। Successfully conducting elections since 1952. Okay. Uphold the values of the constitution. What are the values? Values of the constitution: equality, equity, impartiality, independence and the rule of law. So constitution, election commission of India uphold the value of the constitution. It conduct election with the highest standard of credibility, fairness, freeness, transparency and integrity. See, these are the keywords which are the most important when you are discussing the importance of the election commission. Importance हो या role हो, आपको keywords के साथ खेलना है और उन्हीं कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। These are the beautiful keywords which you have to use: equality, equity, impartiality, independence, rule of law. Similarly, so the highest standard, conduct election. So these are the, आपको रट के जानी है यार ये लाइन। Election Commission of India conduct election with the highest standard of credibility, fairness, freeness, transparency, integrity, accountability, autonomy and professionalism. ठीक है। Disciplines political parties, even threatening parties to recognize them if parties failed in maintaining the inner party democracy. ठीक है। It ensure the participation of all, और participation के लिए various political campaign, political awareness चलाता है जो, provide inclusive, voter centric and voter friendly environment. So these are the keyword: voter friendly, voter centric environment. It engages with the political parties and all stakeholders in the interest of the electoral process, to make electoral process fair, transparent and inclusive. Okay. And as I told you, it create a massive awareness campaign among the voter to vote to force them or to push them to vote their right, to exercise their right to vote. Okay. और इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसका? टू मेक इलेक्टोरल प्रोसेस मोर फेयर, जैसा कि हमने देखा कि ईवीएम को लेके आया, टोटलाइजर मशीन का कॉन्सेप्ट जो लेके आया। ठीक है। अभी इसके साथ हम देख रहे हैं कि एनआरआईज को वोट डालने के लिए बात की जा रही है। तो हाउ मेकिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस मोर फेयर, ट्रांसपेरेंट, ओके, रैशनल। सो दिस इज व्हाट। और इसके साथ साथ ये अगर कोई मिसक्रिएंट है या कोई अगर कोई नॉन स्टेट एलिमेंट है या कोई मतलब अनडिजायरेबल एलिमेंट है, उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। तो अभी हमने देखा रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन टू इंक्रीज द वोटर पार्टिसिपेशन, क्या क्या किया? इंट्रोड्यूसिंग द वीवीपैट, ओके, then to check the EVM result through paper audit, replacing the paper ballot through the EVM, sweep portal to increase the awareness, to spread the education regarding the political literacy. Similarly in SMS के थ्रू आपको बोलेगा कि भाई अपना वोट जाके दो, अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो ये सारे काम जो है इलेक्शन कमीशन करता रहता है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन नोटा का कॉन्सेप्ट लेके आया कि टू एक्सरसाइज कि भाई इफ यू इवन यू आर नॉट फाइंडिंग दैट द गिवन कैंडिडेट among the whatever the candidate are running for the election, if you are finding that these are not suitable,
you can then press the nota button, none of the above. Okay, so now discussing what are the major challenges. So what are the major challenges for the election commission of India? तो सबसे पहले 3F को आप हमेशा अपने साथ लेके चलो, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरी। और कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आ रहा है तो यूज दीज 3F। फंड की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में फंक्शंस जो है, फंड जो है उतना नहीं है मैसिव लेवल पे कि ये जो है सारे पूरे कंट्री के लेवल पे अपने सुओ मोटो एक्शंस ले पाए। फंक्शंस की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बात कही जाती है कि इलेक्शन कमीशन इज अ टूथलेस टाइगर। इसके पास में पनिश करने के लिए पावर नहीं है, डिरिकॉग्नाइज करने के लिए पावर नहीं है, ठीक है। इसके पास में बहुत सारी पावर नहीं है जो इसके साथ में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है इसमें कि फंक्शनरीज, लैक ऑफ फंक्शनरीज, इसके पास फंक्शनरीज उतने नहीं है, ठीक है, इसके पास में उतने फंक्शनरीज नहीं है। ये डेपुटेशन पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे कंट्री लेवल पे इलेक्शन होता है तो इसके पास खुद की जो है जो बंदे हैं पर्सनल है वो बंदे नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसके सामने फर्दर ये तो हो गया इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस क्या क्या है। अब इसके अलावा और क्या क्या चैलेंजेस है आउटसाइड में देखें तो इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ criminalization of politics, increasing trend of money and muscle power. Okay, then we can say that the menace of fake news by the social media. ठीक है, उसके बाद हम क्या दे सकते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या है कि जो not adequately equipped and given power to regulate the political parties. ठीक है, इसके पास पावर भी नहीं दी गई है उतनी जो है, ठीक है। इसके अलावा मतलब एलिगेशंस बार बार लगते हैं कि ईवीएम में मतलब फेयर, तो ये टू रिपोज द ट्रस्ट अमंग द एग्जामिनर, ठीक है। इसके अलावा यूज ऑफ ब्लैक मनी इन द इलेक्शंस, सो दीज आर द मेजर चैलेंजेस बिफोर द इलेक्शन कमीशन। ओके, नाउ कंक्लूड किस तरीके से करेंगे हम। इसके अलावा और क्या क्या चैलेंजेस हैं, हम यहाँ पे अगर चैलेंजेस की बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्दर चैलेंज में देखेंगे कि जो अपॉइंटमेंट जो होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, अपॉइंटमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट में काफी कंट्रोवर्सी थी तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट by done by the central government, ठीक है। So election commission is a bedrock of the parliamentary democracy of India. It is the sole body responsible for conducting the elections, okay, and elections are the soul of any democracy. But the person who is conducting the election, that is what election commission of India, and he is appointed solely by the central government. So there is a demand coming from the judiciary and the various civil society person कि भाई जो बंदा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है he should be appointed like सीबीआई का जो बंदा अपॉइंट हो रहा है या फिर जो भी और बंदे अपॉइंट हो बाय प्रॉपर कमीशन और विच विल बी इंक्लूसिव ऑफ पीएम, सीजेआई एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, ताकि एक फेयर बंदा अनबाइज्डनेस क्रिएट किया सके, ठीक है। इसके बाद में पोस्ट रिटायरमेंट बार नहीं है कोई बंदे की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो हमको पोस्ट बार की भाई बंदा जो है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिटायर हो गया उसके बाद में कोई भी वो है कहीं पे भी जो है नौकरी नहीं कर सकता, ये प्रोविजन है नहीं, तो ये प्रोविजन भी करना पड़ेगा। इसकी जो सैलरी है दैट शुड बी फ्रॉम द इसकी जो सैलरी है दैट शुड कम फ्रॉम द जो फंड ऑफ इंडिया है उसके थ्रू आनी चाहिए जो है, ठीक है। ये जो अपनी इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं और वेरियस वी कैन से द कॉन्स्टिट्यूशनल फंड ऑफ इंडिया कर सकते हैं चीजों को जो है। इसके अलावा और क्या क्या है, हम कंक्लूजन जो करेंगे तो कंक्लूजन जो होगा वो कंक्लूजन जो अपना वे फॉरवर्ड के टाइम पे होना चाहिए, पॉजिटिव नोट के साथ खत्म करेंगे लाइक कि रिफॉर्म नीडेड है, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज तीनों में काम करने की जरूरत है, नीड्स टू बी एम्पावर्ड। सेकंड ईयर ने बोला कि कॉलोजियम हेडेड बाय द पीएम विद स्पेशल पावर लोकसभा एंड लोकसभा लॉ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट फॉर द इलेक्शन कमीशन। तो ये सेकंड ईयर की रिकमेंडेशन थी कि एक कॉलेजियम बना दो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इशू करना है और इसके साथ साथ हमको कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड आर्ग्यूमेंट और जो रिलेटेड जजमेंट है वो हमको यहाँ पे आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे हमको डालने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज प्रीएम्बल। ओके, तो प्रीएम्बल की अगर हम बात करें अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिपीटेडली बीइंग आस्क्ड बाय द बीपीएससी। नाउ डिस्कसिंग द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टुलेट its preamble that India shall be a socialist, secular, democratic republic. What are the constitutional provisions to enforce these? So this is the question asked in the 64th. Okay, Indian Constitution postulate in its preamble that India shall be a socialist, secular, democratic republic. What are the constitutional provisions to enforce these? तो
आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में भी, अगेन ब्रेक द क्वेश्चन इनटू वेरियस सब पार्ट्स, देन recollect the content you are having in your mind from introduction to the conclusion to the value added materials you are going to write, and after recollecting that in your mind then start writing the answer. So now introduction की अगर हम बात, अभी एक बार introduction बाद में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे जो और क्वेश्चन देख लेते हैं. Evaluate the nature and significance of the preamble of Indian Constitution. Okay, nature and significance of the preamble, ठीक है. Then examine the relevance and significance of the philosophy enshrined in the preamble. So more or less same kind of question they are asking कि you have to you must be aware कि what are the important thing ingredient of the preamble, what is the significance of the preamble, what is the nature of the preamble, okay, and what is the present situation of the preamble, and how preamble is a guiding light for the constitutional maker or for the legislator or executive or for that sake the judiciary. And so what is the role of preamble in upholding the unity, integrity and sovereignty of India. So this kind of nature BPSC has been asking. So now coming to the introduction, preamble का एक intro आप अच्छे से तैयार कर लो यार, ठीक है. Like the preamble is the preface to the constitution. It consists the essence or the summary of the constitution. Okay, it is based on the we can say US जो उनका जो राइट्स का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, यूएस में जो उनका जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था उस पे बेस्ड है, एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, इट इज बेस्ड ऑन द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय द नेहरू, जवाहरलाल नेहरू. ओके, एंड उसके बाद में एक स्कॉलर को कोट कर दो आप जो है कि नीना पलकीवाला कॉल्ड प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो आपको जो है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन drafted and moved by the Pandit Nehru and adopted by the Constitutional Assembly. So आपको इस तरीके से एक इंट्रोडक्शन तैयार करना है. Preamble contain the preface to the Constitution. Preamble signify the preface to the Constitution. It contain the essence and the summary of the Constitution. It is based on the draft resolution presented by the Jawaharlal Nehru, which was adopted by the Constitutional Assembly. ठीक है. N.K. Palkhiwala said preamble that it is the identity card of the Constitution. Okay, now after writing this intro, क्वेश्चन आपको क्या डिस्कस करना है. अब आपसे पूछेगा कि प्रीएम्बल के इंग्रेडिएंट क्या है, तो बेसिकली द 4 कंपोनेंट ऑफ द प्रीएम्बल. ठीक है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट प्रीएम्बल एक्चुअली कंसिस्ट. एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा प्रीएम्बल के बारे में कि 5-6 लाइन का है, कैसे भी करके प्लीज अपने प्रीएम्बल को रट डालिए. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to constitute its all citizen, justice, social, economic, political. Okay, then आपको इसके अलावा जो भी आपकी वहाँ चीजें आती हैं, liberty of thought expression, belief, faith and worship. ठीक है, इसके अलावा equality of opportunity and fraternity assuring among them all and to upholding unity and integrity of India. ठीक है, इस तरीके से लास्ट तक आपको अपने प्रीएम्बल की एक एक वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए. ठीक है, नाउ क्योंकि अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से उसको ब्रेक करके आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे. Now preamble reveals the 4 component, and what are those 4 component? The first one is source, and source क्या है? Source of the constitution, we the people. दूसरी चीज क्या है? It contain the nature of the Indian state. Nature of Indian state कैसा है? Nature of the Indian state is sovereign है, socialist है, secular है, democratic है, republic है. ठीक है. Then the third thing is what? Objective of the constitution. अब objective क्या क्या है constitution की? To ensure justice, liberty, equality and fraternity. So these are the objectives. The fourth thing क्या है? Fourth thing of your preamble tells you the date of adoption, and the date is November 26, 1949. So basically these are the 4 component of your preamble, and आप इसको फ्लो चार्ट में भी यूज कर सकते हो. कंपोनेंट 1, 2, 3, 4 आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो. ठीक है, अब आती है आपके प्रीएम्बल के जो कीवर्ड है उस पे आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई सोवरेनिटी का मतलब क्या है. सोवरेनिटी का मतलब होता है कि अ नेशन इज इंडिपेंडेंट विदाउट एनी डोमिनेशन एंड इज फ्री टू मेक एनी डिसीजन एंड फ्री टू चैनलाइज इट्स फॉरेन पॉलिसी. ओके, सो देयर इज नो डोमिनेशन एंड द नेशन डिपेंडेंसी ओवर नो वन. नेशन इज सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी. दिस इज द मीन्स ऑफ सोवरेनिटी. बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज नॉट सोवरेन. ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द सिचुएशन? वी वर द डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म.
देन द सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का वर्ड क्या, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिज्म मतलब कि we can say toward the society. Okay, so Indian brand of socialism is a democratic socialism, mix of the Gandhian socialism plus the Soviet socialism, but tilted toward the Gandhian form of socialism. Okay, we are having not a market based economy but a mixed economy. एंड समता केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई थी, वहां पे बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, सोशलिज्म को डिफाइन किया कि इंडिया इज ए सोशलिस्ट कंट्री। और इसके अगर हम जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन था वो बोल रहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें दी गई हैं, आप प्रियम्बल में जो भी चीजें दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है उनको इंश्योर करने के लिए, वो चीजें आप बताओ। तो सोवरेनिटी में क्या क्या है, आर्टिकल 1, 2, 3, ठीक है, वो है। इसके अलावा अगर आप सोशलिस्ट की बात करें तो डीपीएसपी में सोशलिज्म की जो स्पिरिट है उसको वहां पे एग्जीक्यूट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल मेंशन किए हैं। सेक्युलरिज्म की बात करें तो सेक्युलरिज्म का मतलब, हाउएवर सेक्युलरिज्म was not there when the preamble was passed in 1949. Secularism, the word secularism was added after the 42nd Amendment Act 1976 with the word social and the integrity. 3 words were added to the Constitution of India later in 1947, 42nd Constitution Amendment. Okay. So now secularism means कि state will not have any its own religion. State का खुद का कोई अपना religion नहीं है। State किसी भी एक रिलीजन को कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देगा और स्टेट सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीट करेगा, ठीक है। सो दिस इज इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। इवन दो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, सो दिस इज कंप्लीटली अ डिफरेंट टॉपिक, वी विल डिस्कस इट समवेयर लेटर इन आवर क्लास। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म बेस्ड ऑन आवर सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल इवेंट. Our secularism is, that is why our secularism is different from the western concept of secularism. Okay, now India में क्या है कि state जो है can interfere in the religion, but in western countries there is a iron curtain over the affair of the state and the religion, but in India state can interfere in the religious affair to give it a progressive voice, like we have saw in Sabrimala case judgment, okay, or the Sunny Dev temple judgment, where Supreme Court or we can say हज यात्रा पे अपन इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो दिस इज हाउ द इंडियन गवर्नमेंट टू गिव द प्रोग्रेसिव वॉइस टू द रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द डोमेन ऑफ द रिलीजन एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड as against the spirit of secularism. This is a unique model of the Indian concept of secularism. So this word was added by the 42nd Amendment, and now to coming to the question that what are the various provisions in the Constitution to maintain the spirit of this word, then the various fundamental right, like we can say article 14, article 15, there will be no discretion on the ground of religion, or suppose we can say article 25, 26, 27, 28, 29, 30, cultural and educational right, religious right. So the fundamental right categorically ensure that India is a secular state. Now coming to the keyword again, democratic. So the India is a democratic country. We are having a representative parliamentary form of government. We choose our representative by free and fair electoral process, and then they rule us on their behalf, and or periodical election conducted. So hence it proved India is a democratic country. Articles 324 to 329. ठीक है. Now justice. What just now we are coming. So till now we were discussed the nature of the Indian state. Now we are discussing the objective of the Indian preamble. How the constitutional maker of India envisages कि what should be the objective of the government to ensure for the citizens of India. So the first term is the justice. Justice should be social, economic and political. सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? सोशल जस्टिस का मतलब है हमारा जो है कि इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. सो दैट इज द सोशल जस्टिस कि कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, किसी भी चीज को लेके सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा. नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिक जस्टिस. तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है. यहाँ पे क्या हुआ कि जो इनइक्वालिटीज हैं उनको दूर करने की कोशिश करी जाएगी, पॉवर्टी को हटाया जाएगा, लोगों को equal access to resources, equal access to the other various important machinery of the state. Now coming to the political justice. Political justice का मतलब है कि universal adult franchisee. Okay, everyone has a right to vote, single right to vote, and then जितने भी political post हैं सब पे कोई भी कैसे भी कहीं भी पहुंच सकता है through the process of election. Everyone has an equal voice in the government. So now coming to the another objective, that is liberty. Liberty का मतलब क्या? Liberty का मतलब है absence of restraint, ठीक है. You are free to do whatever you want to do under the reasonable restrictions. So liberty basically ensure the adequate development of the personality of the individual.
सो नाउ इक्वलिटी की बात करें तो इक्वलिटी ऑफ व्हाट, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एवरीवन इज इक्वल, आर्टिकल 14, 15, 16। ओके, लिबर्टी के लिए भी सेम आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आर्टिकल 14, 19 जो आपके जो है ये आपको डालने पड़ेंगे। फ्रेटर्निटी, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा, प्रमोटेड बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, ओके, डीपीएसवीज वगैरह है वहां पे जो है। सो नाउ कमिंग टू द स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल। सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल? प्रीएम्बल क्या है कि अगर हम स्टेटस की बात करें तो प्रीएम्बल, नेचर ऑफ द प्रीएम्बल, इट इज नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है, इट इज अमेंडेबल। अमेंडेबिलिटी की बात करें तो बेरुवारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि you cannot amend the preamble because it is not the part of the constitution. But however, later on in Keswananda Bharti case, Supreme Court categorically mentioned the preamble is the integral part of the constitution and you can amend the constitution provided you will not distort the basic structure doctrine. Okay. Similarly, SR Bommai case में और LIC of India case में Supreme Court further reiterate the fact that preamble is the integral part of the constitution. Okay. आप इसके लिए 3 ट्रिपल बी याद कर सकते हो। ट्रिपल बी, बेरुवारी यूनियन, बोमई केस, एसआर बोमई और केशवानंद भारती केस, these are related to the this thing. Now coming to the significance of the preamble, as question directly been asked, discuss the significance of the preamble. So the preamble has limited significance in the interpretation of the constitution. ये बेरुवारी में बोला था, केशवानंद भारती में बोला कि भाई the constitution should be interpreted with the grand and noble vision expressed in the preamble by the constituent assembly member, ठीक है। और 39B और 39C superior to the fundamental right है, ये डिटरमाइन किया गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, आर्टिकल 31C एडिट किया गया था, 31C एंड 39B एंड C सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों बोला था? बिकॉज ऑफ द, क्योंकि प्रीएम्बल की जो स्पिरिट थी उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन टू एनफोर्स द प्रीएम्बल, जैसा कि मैं आपको भी डिस्कस कर रहा था साथ साथ में, आपके डीपीएसवी हो गए, ठीक है। देन आपके जो है यहाँ पे देखे तो फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है। जस्टिस के लिए हमने देखा डीपीएसवी हो गया, इक्वलिटी के लिए हमने देखा, इक्वलिटी के लिए किस तरीके से आपका जो है राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, ये सारे आर्टिकल्स टू एंश्योर इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड असेंबली कंडक्टेड ऑन द बेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, आर्टिकल 325, दिस पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 39, ठीक है। फ्रेटर्निटी, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमने देखी, किस तरीके से फ्रेटर्निटी के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू एनफोर्स द प्रीएम्बल, ठीक है। इसके अलावा हम कंक्लूड करेंगे, तो कंक्लूड किस लाइन पे करेंगे कि अपन के पास में ना यार प्रॉपर कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, लाइक इट अपहोल्ड द ग्रैंड नोबल विजन एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स। सिमिलरली हमारे पास में ना कंटेंट होना चाहिए कि एक किस स्कॉलर ने क्या क्या बोला, एन.के. पलखी वाला ने क्या बोला, ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर ने क्या बोला, ग्रैनविल ऑस्टिन प्रीएम्बल के बारे में क्या बोल के चले गए, ठीक है, सुभाष कश्यप ने प्रीएम्बल पे क्या बोला। तो आप जब कमेंट्री जहाँ लिखोगे ना तो दैट विल डिफरेंशिएट योर आंसर। तो प्रीएम्बल में नॉन एन पलखी वाला प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड। के.एम. मुंशी बोलते हैं कि मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, ये बोलते हैं कि प्रीएम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आप कंक्लूड कर सकते हो इनकी लाइन को लेके या इनकी लाइन को लेके, ठीक है। प्रीएम्बल embodies the basic philosophy and fundamental values which the constitution is based. It contains the grand and noble vision of the Constituent Assembly, and reflect the dream and aspirations of our founding father of the Constitution. So you can directly cut, copy, paste this line in your conclusion, that it contains the grand and noble vision of the Constituent Assembly and reflect the dream and aspirations of our founding father of the Constitution. Thus, it was rightly said by K.M. Munshi that preamble is the horoscope of our sovereign democratic republic. आप इस तरीके से conclude कर सकते हो। So now coming to our next topic. Next topic is Panchayati Raj Institute. Okay. So PRI again very important topic and repeatedly been asked by the BPSC. Okay. So now इस क्वेश्चन हमको क्या करना है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या आए हैं। क्वेश्चन in front of you. Analyze the functioning of the rural and the local government in India since 1991. Rural and local government in India since 1991 with reference to Bihar. Okay, now discuss the basic provision of the 73rd Constitution Amendment Act. Now, what is the amendment procedure in India?
what are the main concept of 73rd amendment, how many amendment have been done in Indian constitution. So basically दोनों को mix किया गया है. Then discuss the objective and feature of the PRIs. So basically एक simple question आएगा आपसे जो है objective and feature of PRI, ठीक है, functioning of the rural local government, तो ये आपसे पूछा जाएगा. तो यहाँ पे क्या करना है, अगेन आपको क्या करना है कि प्रॉपर इंट्रोडक्शन तैयार करना है आपको जो है, ठीक है. इंट्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है. आपका इंट्रोडक्शन एप्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, सो दैट यू कैन जस्टिफाई विद द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड यू कैन कैच द अटेंशन ऑफ द इवेल्युएटर. ओके, सो मैं आपको अभी एक इंट्रोडक्शन बता दूंगा, पीआरआई पे क्या इंट्रोडक्शन लिख सकते हो. तो आप क्या पंचायती राज सिस्टम पे आप क्या इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, ठीक है. सो पंचायती राज पे आप क्या, पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी. ओके, आप एक, मैं आपको इंट्रोडक्शन बोल रहा हूँ, आप इस इंट्रोडक्शन को लिख लो आप अपना जो है, और इसी इंट्रोडक्शन को पीआरआई पे लेके आना है. सो वी कैन से कि पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी व्हिच मींस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. It aims to empower the powerless and to give voice to the voiceless. Okay, I am repeating it again कि पंचायती राज system is based on the principle of subsidiarity, okay, which means the democratic decentralization. It aims to empower the powerless and to give voice to the voiceless. ठीक है. इसके बाद हमको क्या करना है कि पंचायती राज सिस्टम एक फर्दर फिर आपको फिलोसफी यूज करनी है यहाँ पे कि पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलोसफी ऑफ स्वराज. ठीक है. इसके बाद में रेडिकल जो डेमोक्रेसी जो है एम.एन. रॉय की, एंड उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय का कॉन्सेप्ट है. तो आप यहाँ पे 3 यूज कर सकते हो. 3 कीवर्ड क्या है, पहला था प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है. दूसरा क्या था कीवर्ड, इट एम्स टू व्हाट, aims to giving power to powerless and voice to voiceless. ठीक है, ये हो जाएगा आपका. उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, देन कमिंग टू द सेकंड पैराग्राफ, तीसरी चीज आप क्या लिखोगे, इट इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ गांधीयन फिलोसफी ऑफ स्वराज, एम.एन. रॉय का रेडिकल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट और दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का कॉन्सेप्ट. इन तीनों पे बेस्ड है अपना जो है ये पीआरआई का जो कॉन्सेप्ट है. ठीक है. उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको जो है पीआरआई पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये चीज आपको डालनी है, इंट्रोडक्शन ये वाला डालना है, सेकंड पैराग्राफ ये वाला डालना है. इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, एक फिगर ड्रॉ कर सकते हो. वो फिगर मैं आपको ड्रॉ करके भी बता रहा हूँ, खाली जगह कहीं आती है तो आप एक फिशबोन डायग्राम यूज करेंगे. ठीक है. फिशबोन डायग्राम यूज करेंगे आप ये वाला. इसमें आप हेडिंग डालेंगे इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज. ठीक है. इसमें आप यहां से स्टार्ट करेंगे 1952 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है. इसके अलावा इसके बाद आप यहां से क्या करेंगे, 1953 नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, या 1957 बलवंत राय मेहता कमेटी. ठीक है. 1967 आई थिंक कौन सी है, 1967 यस. एंड बिफोर दैट 2 अक्टूबर नागौर विलेज पंचायत 1967 अशोक मेहता कमेटी. ठीक है. देन एल.एन. सिंह भी ईयर के साथ में. ठीक है. देन आपका जो है तुंगन कमेटी, देन 73rd अमेंडमेंट, देन 74th अमेंडमेंट. आप इस तरीके से बहुत जल्दी एक फिशबोन डायग्राम बना लेंगे और उस फिशबोन डायग्राम के साथ आप दिखाओगे इवोल्यूशन ऑफ पीआरआई. सो दिस इज हाउ, दिस इज अ कॉमन थिंग. अब कोई भी क्वेश्चन आता है पीआरआई पे, ये कॉमन चीज आपको जरूर डालनी है. इंट्रो जो बताया आपको वो,
दूसरा आपको जो है वो गांधी, एम.एन. रॉय और अंत्योदय का, दीनदयाल उपाध्याय का, और ये फिशबोन डायग्राम रिगार्डिंग द एवोल्यूशन। दीज आर द 3 कॉमन थिंग। कोई भी क्वेश्चन हो पीआरआई पे ये चीज आपको डालनी है टू गेट द एक्स्ट्रा मार्क्स। ओके, सो नाउ कमिंग टू दिस थिंग। अब यहाँ पे क्या करना है, पीआरआई पे क्वेश्चन आएगा तो आप स्कॉलर को कोट करो। ऑल साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप जो है जितना ज्यादा हो सकता है स्कॉलर्स का कोट करो, पोल साइंस की नॉलेज का आप इस्तेमाल करो। प्रताप भानु मेहता हो गई, सुधा पाई हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो भी पीआरआई पे जो भी स्कॉलर रहे हैं, मणिशंकर अय्यर कमेटी की रिकमेंडेशन हो गई, सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन हो गई, 73rd 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके कंपलसरी प्रोविजंस क्या क्या हैं ये हम डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करना है हमको कि प्रोविजंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो और बाकी जो चीजें हैं आप इसमें जो मैंने वो बोला है अभी आपको पीडीएफ में सब दिया हुआ है, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप अपना है कलाम आईएएस बीपीएससी पीएसआर प्लस जीएस करके है। तो बेसिकली यहाँ पे वी विल डिस्कस कि कमेटीज मैंने आपकी सारी डिस्कस कर ली, आपको कमेटीज पता होना चाहिए। बलवंत राय मेहता, एलएम सिंघवी। फेजेस ऑफ द पीआरआईज कैसे रहे, किस तरीके से रिवाइवल हुआ, ठीक है। फेज ऑफ एंथुजियाज्म, पहला वाला फेज जो था जब कंट्री में पूरी में एंथुजियाज्म था जो उनकी 1960s तक था। देन हमने देखा कि फेस ऑफ स्टैग्नेशन आ गया। देन हमने देखा कि फेस ऑफ रिवाइवल आया 1990 में कि भाई 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट आई। और अभी का जो फेज चल रहा है दैट इज फेस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट। डिसइल्यूजनमेंट बोला मणिशंकर अय्यर कमेटी ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें आराम से मिल जाएंगी। अब उसके बाद हम देखेंगे कि पुंछी कमीशन की क्या क्या रिकमेंडेशन है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इन पुंछी कमीशन ने क्या बोला कि पीआरआई के रिफॉर्म क्या क्या करने चाहिए। आपको पता होना चाहिए पीआरआई में डिस्प्यूट्स क्या क्या हैं, सारी चीजें, ठीक है। पीआरआई में क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं, पीआरआई में इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं। तो अगेन दीज 3 है फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज, इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके अलावा हम देखेंगे किस तरीके से जितने भी आप किस तरीके से ग्राम सभा कंपलसरी प्रोविजन है भाई। अब इसमें क्या इश्यू है कि वेगली डिफाइंड टर्म, ग्राम सभा की पावर क्या होंगी कुछ नहीं पता गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन है, इसमें इश्यू क्या क्या है। ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंस बॉडी नहीं है, कंटिन्यूस इलेक्शन नहीं करवाती है। स्टेट फाइनेंस कमीशन है, एक्सपर्ट नहीं है इसके अंदर में। रिफॉर्म ये रिफॉर्म ही नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे पावर डिवॉल्व की गई है बट नॉट कंप्लीट डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, ठीक है। ये स्टेट के ऊपर छोड़ दिया है। फंड की बात करें तो फंड नहीं दिया जाता है पूरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एक एक करके जितने भी फीचर्स हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के वो फीचर्स देखेंगे, फिर उन फीचर्स में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं और इस तरीके से हम जो है इश्यूज रिलेटेड टू द पीआरआई डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे ये देखो फीचर्स आपके आगे लिखा हुआ है, व्हाट आर द फीचर्स। ग्राम सभा होगी, 3 टायर मैकेनिज्म, दिया था कंपलसरी फीचर, 3 टायर मैकेनिज्म होगा, ठीक है। इलेक्शंस ऑफ द मेंबर, चेयरपर्सन, ठीक है, किस तरीके से होगा। अब वो आपको बता दिया है कि विलेज के लेवल पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, बट मिड लेवल पे और 3rd लेवल पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। इसके अलावा क्या है, रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन फॉर SC/ST मतलब वुमेन के लिए है और SC/ST के लिए प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। ड्यूरेशन 5 साल का कंपलसरी है बट कैन बी डिसॉल्व्ड इवन बिफोर दैट। स्टेट इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म किया जाएगा, कंडक्ट पंचायत इलेक्शन एंड प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल, ठीक है। पावर एंड फंक्शन एंडोर्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि ये सारी चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है भाई कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, पॉवर्टी को दूर करना है, बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, टू कॉल द नेशनलिज्म रीजनलिज्म मतलब नेशनल इंटीग्रेशन को करना है, गांधीयन DPSP कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल रीजन, ठीक है, डीपनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। अब हमने देखा इश्यूज विद द पीआरआई क्या क्या है। इश्यूज विद द पीआरआई में अगर हम देखें तो अनसाइंटिफिक, जैसे कि मैंने आपको अभी डिस्कस किया था, अनसाइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस, ओवरलैपिंग है, डुप्लीकेशन है ऑफ एफर्ट है, ठीक है। इसके अलावा इनकम्पैटिबल रिलेशन बिटवीन द 3 टायर्स हो गया, फाइनेंस नहीं है इनके पास में, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीआर मेंबर एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइक BDO एंड VDO, ठीक है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पीआरआईज ये हमने देखा। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, ये सारे जो इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम वे फॉरवर्ड में देखेंगे तो वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है कि वे फॉरवर्ड में वेरियस कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन है, मणिशंकर अय्यर कमेटी की रिकमेंडेशन है,
कि और कीवर्ड्स का याद रखना है कि नेक्सस बिटवीन द क्रिमिनल एंड द पॉलिटिशियंस एंड द पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव, देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी अमंग द ब्यूरोक्रेट्स टू फेल द पीआरआई सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि मणिशंकर रेयर कमेटी ने एक बात बोली कि बैड पंचायती राज इज वर्स देन द नो पंचायती राज। करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, डिसइल्यूजन, स्टेट ऑफ डिसइल्यूजनमेंट है, ठीक है, तो हमको इस चीज को रिवाइव करने की जरूरत है। अब हमने 33% रिजर्वेशन तो दे दिया यहाँ पे बट वुमेन को, बट सुधा पाई बोलती है कि पंचायत पति सिंड्रोम है, बट हाउएवर देयर इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि इससे वुमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से हमको अपनी चीजों को लेके आगे बढ़ना है। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज, और इसके अलावा क्या वे फॉरवर्ड करने की जरूरत है, सोशल ऑडिट, प्रॉपर सोशल ऑडिट मैकेनिज्म की जरूरत है। ठीक है, केरला मॉडल जहाँ पे हमने देखा कि केरला ने पंचायत ओम्बुड्समैन बना रखे हैं, वहां पे ग्रीवांस रिड्रेसल बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि सरकारी कमीशन रिकमेंडेशन देता है कि पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जैसे कि राज्यसभा में स्टेट का होता है, ताकि हम पंचायत बॉडीज को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना सकें और रिस्पॉन्सिबल बना सकें। इनको बेहतर फंड एलोकेट करने की जरूरत है। फिलहाल का फंडिंग का मैकेनिज्म क्या है वो आपके चीजें क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम पे इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है डिजिटलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, ई गवर्नेंस का यूज करना चाहिए हमको जो है जितना ज्यादा हो सकता है, टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड टू टैकल द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। हमको ई गवर्नेंस का यूज करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा और क्या कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम जो पीआरआई के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी ट्रेनिंग मैकेनिज्म कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलके फर्दर डिवोल्यूशन ऑफ पावर करना चाहिए एग्जैक्ट, ताकि और उनको जो ट्रेन किया जाना चाहिए फर्दर फाइनेंसेस अर्न करने के लिए। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द पीआरआई मैकेनिज्म। अगेन आई एम कंक्लूडिंग वेरी ब्रीफली कि पीआरआई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन आपको वही लिखना है जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद में आप जो क्वेश्चन है, अगर कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू पीआरआई है तो वो लिखो, अगर फीचर्स ऑफ 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है तो आप वो लिखो वहां पे जो है। मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन आए हैं बार बार, कहां कहां से आए हैं और क्या क्या आ सकते हैं। फीचर्स ऑफ 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके अलावा इश्यूज रिलेटेड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसके अलावा फर्दर क्या क्या रिफॉर्म करने की जरूरत है, हाउ इट इज अ हाफ बेक्ड केक, ओके, और इसके अलावा डिफरेंट कमीशंस की रिकमेंडेशन क्या क्या है, क्या क्या वे फॉरवर्ड किया जा सकता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म क्या है, डिफरेंट स्टेट्स की केस स्टडीज का एग्जांपल दे सकते हो, देन बिहार में क्या पंचायती राज का मैकेनिज्म है वो चीज आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, बिहार का पंचायती राज एक्ट पढ़ लेना, 2006 में आया, 2006 के बाद में बिहार में पंचायत में जो ग्राम कचहरी का जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेना। बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट टू गिव 50% रिजर्वेशन टू द पंचायत इन द पंचायती राज टू द वुमेन। इसके अलावा हमने देखा कि वहां पे जो है किस तरीके से बिहार गवर्नमेंट की वेरियस पॉलिसीज हैं पंचायती राज को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, बिहार में पंचायती राज में क्या नोमेनक्लेचर होता है, ग्राम लेवल पे मुखिया होता है, ठीक है, जो ब्लॉक लेवल पे प्रमुख होता है, और उसके बाद में जिला पंचायत में जो जिला पंचायत का जो प्रमुख होता है। ठीक है, इसके अलावा जो ये तो हो गए अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। एग्जीक्यूटिव में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, पंचायत सेक्रेटरी, देन ब्लॉक लेवल पे बीडीओ होता है, और देन विलेज डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डीडीसी या डीएम होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बिहार गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या क्या हैं, किस तरीके से बिहार गवर्नमेंट जो है पंचायती राज के थ्रू गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रही है, और इसके अलावा क्या क्या बिहार में पंचायती राज में इश्यूज हैं। लाइक यू कैन ड्रॉ दिस वेरी कॉमन फिगर रिगार्डिंग द इश्यूज इन द पंचायती राज इन बिहार। पीआरआई इश्यूज इन बिहार, to the casteism, corruption, criminalization, you can say feudalism, patriarchy. So these are the various issues specifically related to the Bihar, and then we can say that lack of political literacy among the people. So these are all the roadblocks in the better functioning of the PRIs in Bihar. तो पीआरआई से बिहार पे क्वेश्चन, बिहार पे मतलब पीआरआई पे क्वेश्चन आता है तो आपको बिहार का एंगल भी वहां पे डालना है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इज अबाउट बेसिकली या दिस इज द पीआरआई इन बिहार। सो यू विल गेट दिस पीडीएफ इनटू द ग्रुप, ओके, टेलीग्राम ग्रुप एंड द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, सो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना ई गवर्नेंस का है। ई गवर्नेंस पे आपके पास ये मिल जाएगा, आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएगा आपको जो है, और इसके साथ साथ जो है ई गवर्नेंस के वेरियस मॉडल्स क्या क्या हैं, G2C, G2B और G2E, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जो एग्जांपल जैसे कि हमने आपको बताए, ये सारी चीज़ों को आपको देख के जाना है।
बिहार में ई गवर्नेंस के लिए क्या क्या प्रोविजन चलाए जा रहे हैं वो सब आपको देख के जाना है, चाहे वो ये सारे जो ई प्रिजन हो, ई कोर्ट हो, चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग, ई म्यूनिसिपैलिटी हो, ठीक है, जीएसटीएन हो, जैम पोर्टल हो, संजीवनी पोर्टल हो, जीविका पोर्टल हो, तो ये सारी चीजें आपको जो है देख के चलनी है। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारे गवर्नमेंट के एफर्ट क्या क्या हैं, ये सारी चीजें आपको देख के जानी है और इन सारी चीजों को आपको अच्छे से स्टडी करके जाना है। सो दीज 5 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड। कंटेंट की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ये सारा कंटेंट पढ़ के चले जाओ। इसके साथ साथ आप स्ट्रक्चर अच्छे से करना, वैल्यू एडिशन अच्छे से करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इन टॉपिक्स पे बेस्ड। कंटेंट पढ़ो, 5 क्वेश्चन के आंसर लिखो, देन आपका फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस। लगे रहो यार, थैंक यू।